हाय एवरीवन, आई होप आप सब ओपन गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ सीख रहे होंगे। सीखने सिखाने के इस अमल को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए जो सेशन लाए हैं उसका टॉपिक है ईमेल एटिकेट। चाहे हम स्टूडेंट हों या अपने प्रोफेशनल लाइफ के किसी भी स्टेज पर, ईमेल्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक के टाइम में ईमेल्स हमारी ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद रही। एक वेल फॉर्मेटेड ईमेल ना सिर्फ आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड की अक्कासी करता है, बल्कि ये आपको आपके ईमेल रेसिपिएंट तक आपके पैगाम को मुकम्मल तौर पर पहुंचाने और आपको उसका मुकम्मल जवाब दिलवाने में भी मददगार साबित होता है। इस सेशन को कंडक्ट करेंगी मिस मीना वली मोहम्मद एंड डॉक्टर आरिफ प्यार अली। Ms. Meena Wali Mohammed is a senior executive with over 3 decades of international experience and a track record of establishing and managing programs in human resource education, training and coaching in environment of South Asia, Afghanistan and North America. Whereas Dr. Arif Pyar Ali is a senior consultant and a keynote speaker focused on unlocking potential, amplifying performance and strengthening workplace relationship। चलते हैं और सेशन को एंजॉय करते हैं। Some people don't like writing, and the reason being that because of vocabulary or because of the language. Because हमारा जो comfort level English language writing के अंदर है ना, वो कभी-कभी थोड़ा सा we are a little shaky about it. Okay, because see, when we went to school, we were taught how to write. When you went to school, you went to tuitions. You did not go to school, or you were doing homeschooling or whatever. घर में आप लोग की schooling ज़्यादा हो रही थी, school में schooling कम हो रही थी. Correct me if I'm wrong. So आप लोग को formally किसी ने writing नहीं सिखाया. हमारे स्कूल के ज़माने में हमारा एक लाइब्रेरी पीरियड होता था जिसमें हमको बुक्स दी जाती थी जो हमको ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती थी, and then we had to come and discuss the book as well. So that helped us develop our vocabulary. तो बहुत सारी चीजें, तो reading is one thing that's going to help you with your writing. How many of you read actually fiction? कितने लोग नॉवल पढ़ते हैं? Whatever you like, fairy tales, horror, thriller, romance, anything. बच्चों की बुक से स्टार्ट करो अगर डिफिकल्टी होती है, और go to any level. हैरी पॉटर पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, it doesn't really matter. What's important is this, that within that books you're going to learn vocabulary. और vocab जो एक word आपको समझ में नहीं आएगा, if you can go and look up that word. देखिए आज भी क्या होता है कि I watch a lot of international media and news. Okay, मैं CNN और BBC ना देखूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है दुनिया रुक जाएगी, मैं नहीं देखूंगी, तो just joking, but I have to watch it. And language evolves, and language is evolving every day. तो evolvement में क्या होता है कि there are vocabs that they are using now, which अच्छा देखो अभी हमने सीखा, क्या सीखा? फेक न्यूज. फेक न्यूज पहले हम कहते थे, कोई कहते थे, हम कहते थे रूमर है, हम कहते थे स्पेक्यूलेशन है, इस किस्म के वर्ड्स हम यूज करते थे अगर कोई न्यूज सही नहीं होती थी. आज हम स्ट्रेट क्या बोलते हैं? फेक न्यूज बोलते हैं, नहीं बोलते? वी सेइंग फेक न्यूज. सो फेक न्यूज आपने कहाँ से सीखा? मीडिया से सीखा. So there are a lot of vocabs that you pick up from the media. Now writing, the most important thing is clarity. If the other party cannot understand what you have written, the whole idea of writing is useless. Okay? When I do workshops, I have a lot of corporate clients, and sometimes they tell me is this, that ma'am, you tell us कि आप simplicity के साथ लिखे, आप clarity के साथ लिखे. हमारे bosses कहते हैं बहुत मोटा मोटा लफ्ज लिखो, use very very difficult vocab. So I said, okay, then your boss is going to sit down with Google or a dictionary to decipher कि वो word का मतलब क्या है. उसका अगर उसको समझ में नहीं, देखिए आपके पास अगर कोई चीज आती है और वो वर्ड अगर आपकी समझ में नहीं आता, you're going to put it aside. You're going to say, ठीक, जब मेरे पास टाइम होगा ना, I'll look it up and understand कि ये वर्ड का मतलब क्या है, अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है. So you also look at things which are simpler. So writing के अंदर most basic thing is
clarity of ideas and clarity of writing. So your thoughts have to be clear. And the important thing is, the first thing is you should know, why are you writing? कोई reason होनी चाहिए ना writing के लिए. So that is very, very important that you understand that. Arif, do you want me to continue or you have any questions? No, thank you for clearing that out. Just to add on to two of your points, जैसे आप CNN और BBC के बिना जो है आप रात में नहीं सो सकते, वैसे मैं Netflix के बिना जो है वो सोना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और स्पेशली अगर आप स्पेनिश ड्रामा देख रहे हो, ये जैसे मनी हाइस्ट था, वो क्या स्पेनिश में नीचे जो है सब टाइटल कुछ और चल रहा है, वो अपना अपना आपस में खेल रहे हैं, वो पीछे से बोल कुछ और रहा है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. मेरा जो गूगल ट्रांसलेटर है पागल हो जाता है, कहता पता नहीं क्या कर रहा है जिंदगी के अंदर. तो ये चीज है. सो दैट्स रियली नाइस, क्योंकि बिकॉज नेटफ्लिक्स और सबटाइटल्स देखकर फॉर मी आई लर्नड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मोस्टली गुड, जो मुझे मेरे करियर में हेल्प कर रहा है. सो दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट. सो यू एज यू सेड, जो भी आपका जो है वो कैप बढ़ा सके. और सेकंड, ये जब हम लिखना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि अगर हम मुश्किल वर्ड्स डालेंगे ना तो we'll be fancy enough for the other person to read, which is not the case. डैनियल केहनन अपनी किताब Think Fast and Slow में लिखता है कि if you really want to see some genius in a form of human, ठीक है, just see how he speaks and he or she speaks or writes. अगर वो आसान जबान में लिख रहा है और आपको समझ में आ गया, उससे बड़ा जीनियस कोई है ही नहीं. So this is really important. So I agree with you, completely agree with you, Meena, on this platform. Okay, should we Meena, should we dive into the email etiquettes wala part? Yeah, it's too early for that. I think what I'm going to do is I'm going to just tell them the steps in writing. तो जरा स्टेप्स बता दूं. एंड ऑल्सो आई लाइक टू, जो आपने नेटफ्लिक्स वाला जो एग्जांपल दिया, दैट आई यूजुअली यूज कि अगर आपके पास रीडिंग का टाइम नहीं है तो वॉच मूवीज विद सबटाइटल. इंग्लिश मूवी देखें सबटाइटल के साथ, बिकॉज ये मूवी में क्या होता है, हम एक्शन से चलते हैं. ह्यूमर है, सब हंस रहे, हम भी हंस रहे, आधा ह्यूमर समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया. एक्शन से हमें समझ आ जाता है, ड्रामा चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई थ्रिलर हो रहा है, कोई मार रहा है किसी को, बहुत कुछ हो रहा है. सो बट इफ you read the subtitles, then it helps you with your vocab and it helps you with your pronunciation also. Because अक्सर कब से कभी ये होता है ना कि सिर्फ it's not just writing, आप लोग को बोलना भी तो पड़ता है ना, बोलना पड़ता है ऑफिसेस में, बोलना पड़ता है आपस में in different forums that you go to. So जब बोलना पड़ता है तो sometimes we are not sure how to pronounce that word. So that pronunciation is also very important, and this subtitle reading helps a lot. Okay, now writing के अंदर the 4 basic steps that we look into. Step number 1 क्या है writing का? Pre-writing. Pre-writing means, देखिए, we think कि writing का मतलब है, जैसे अगर आप लोगों ने किसी ने भी हमारा virtual presentation वाला जो सेशन था, लाइव सेशन परसों, वो देखा था, तो उसमें मैंने ये बोला था कि जब पावर पॉइंट आप शुरू करते हैं लोग बनाना, तो दे जस्ट टर्न ऑन द लैपटॉप, सिट ऑन द लैपटॉप एंड स्टार्ट ठक 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 एंड द पावर पॉइंट इज रेडी. इट डजंट वर्क दैट वे. ओके, राइटिंग इज द सेम वे. देखिए, इनिशियली यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्री राइटिंग. प्री राइटिंग का मतलब क्या है? अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग ऑफ व्हाई यू शुड नो व्हाई यू आर राइटिंग. तो आपका एक प्री राइटिंग होता है कि अच्छा मुझे इसलिए लिखना है. 2-3 अच्छे वोकैब के वर्ड आपने ढूंढ लिए, नॉट डिफिकल्ट वंस, वर्ड्स दैट यू आर यूज्ड टू, वर्ड्स दैट विल एक्सप्रेस यू बेटर. ओके, देन यू एक्चुअली डू द राइटिंग. राइटिंग जब एक्चुअली आप कर लेते, उसके बाद उसको आप रिवाइज करते, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिंग. ओके, द होल चार्म ऑफ राइटिंग इज इन एडिटिंग. आप कितना भी गंदा लिखे, कितना भी बुरा लिखे, कितना भी out of context लिखे, once you edit, game is in your court. The whole art is editing. Editing means you have to look at it again. आप उसको थोड़ी देर छोड़ दे लिखा हुआ. Go back to it, because when you go back to it, आपके दिमाग से जो आपने चीजें लिखी थी ना, वो clear हो जाती है. Your mind is blank again. Then when you read it, then you see the gaps. क्योंकि हमें अक्सर gap नजर नहीं आता. We think that we've written everything. For example, if I say that if somebody says that, okay,
I've still not joined the chat as yet. I am joining because, you know, I left from this place and I was supposed to come to this place and I got delayed on the road and there was traffic over there. अब उसने पूरा अपना situation बयान कर दी कि the person did not make it on time because the person was late, she got stuck, she got good, she all these things happened. But she never explained what was her starting point. Did she start, is she living in Islamabad? Is she living in Lahore, in Gilgit, in Chitral, in Karachi, in Punjab, in Khyber Pakhtunkhwa, in Garden East, in Platinum, in Clifton, in Defense? Gap tha information ke andar. So if she says that I started from Garden East, supposing, okay, and Soldier Bazaar pe rush tha, या सोल्जर बाजार पे पुलिस ने नाका लगा के रखा हुआ था, then you understand, you can relate to it and you can imagine it कि ओके वो रास्ते से आ रहा था कोई और वहां पर नाकाबंदी थी, the road was closed for whatever reason, check posts were there, whatever it is. So you understand where the person got delayed. So जब हम लिखते हैं ना तो हम jump करते हैं writing के अंदर without giving any details of what is happening. And then editing के बाद proofreading is very, very important, that we proofread. The proofreading is not just, देखो editing में आप edit तो कर चुके, तो proofreading what it does is whatever, देखिए when you're doing letter writing ना तो आप word document इस्तेमाल करते हो, okay? Word document has a spell checker and that spell checker also give you suggestions on grammar, correct? Yeah, okay. But when you do email writing, it does not give you any spell check. What happens is this, that in email writing there is only spell checker, there is no grammar. So again, जैसे उस दिन मैंने example थोड़े दिन पहले दी थी कि अगर आपने आरिफ को email किया और आरिफ को आपने DER dear आरिफ की जगह DEER आरिफ कर दिया तो आरिफ बन गया हिरन, okay? The spell check is not going to pick it up because the spelling is correct. Correct है spelling या गलत है? Correct है ना? So how will the spell check pick it up? उसको तो नहीं थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी तक आई नहीं है ना उसके अंदर. AI होता तो स्पेल चेक बोलता कि भाई तू बंदे को लिख रहा है, बंदा हिरन नहीं है, okay? So the AI is not there as yet. So the spell check did not pick it up. So if the spell check did not pick it up, your proofreading went all the way out. You did not proofread, that means. Okay, Arif, we are ready to move on to the next step now. That's all about email writing. मीना, I just want to add, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादातर फंसता हूँ. I don't know about the audience right now. जब हम इतनी सारी अंग्रेजी लिख लेते हैं ना, इस खुदा की कसम इसके बाद दिल नहीं होता मेरा एडिटिंग या फिर प्रूफ रीडिंग का. और फिर मैं जैसे हस्बे जायका कहीं कॉमा लगा देता हूँ और कहीं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील गुड के यार ओके आई नो ग्रामर, राइट? मेरी मिस हफीजा इंग्लिश की टीचर नाराज नहीं होगी मुझसे. बट यू सेड करेक्टली that writing is just the 1/3 of the entire process. The second part is the editing and third part is proofreading. अपने आप को willfully you have to get into the process of doing it. वरना आप letter लिखें, email लिखें या whatever you're writing will not be of that impact as you want it to be, right? वो 3 Idiots वाला concept है कि कहना क्या चाहते हो, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा. वो आपने लिख तो दिया है, बाकी डियर जो भी है आरिफ सर जो है रिप्लाई कर देंगे, अब क्या कर सकते हैं, आरिफ सर मासूम से हैं. On to the second part and that is email etiquettes. जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स हैं, जो यहाँ प्रोफेशनल so you write a lot of email. अगर नौकरी के लिए भी लिख रहे हो ना, so you write a lot of cover letters and emails to get you a job with your CV. I see that a lot. So ये जो हम अब steps बताएंगे या मीना जो है हमारे साथ शेयर करेगी, I'll just add on to that, will help you create an impact in emails. ठीक है? ईमेल एटिकेट पे जाने से पहले ना एक और तुम लोग के लिए सवाल है. एक हम टेक्निक करते हैं, टेक्निक का नाम है PAIBOC. Anybody, any idea? What does P stand for, A stand for in writing, I, O, B, O, C? अच्छा, P का चलो मैं तुम लोगों से बताती हूँ कि P होना चाहिए when you start writing is
what is the purpose of your writing? email लिखने से पहले what is the purpose? Make sense or not? There has to be a purpose, there has to be reason. Otherwise, why would you be writing? So the person that you're writing to is also clear that this is the purpose, that you want them to inform about something, you want permission for something, you want to get a approval for something, there has been an incident that you want to report to them. So there has to be a purpose of writing. Why are you writing to them? तो अगर पर्पस मैंने बता दिया तो ए क्या होना चाहिए? ऑडियंस इज, यू हैव टू नो हु योर ऑडियंस इज, हु आर यू राइटिंग टू. बिकॉज देखिए, जब आपको पता होगा ना आप किसके लिए लिख रहे हो, तो आपका लैंग्वेज, आपका टोन, आपकी नॉन वर्बल जो ईमेल के अंदर जा रही है, राइटिंग के अंदर जा रही है, फिर क्योंकि व्हाई वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन ईमेल राइटिंग इज बिकॉज लेटर राइटिंग आजकल बहुत कम होता है. Lots of in organizations we don't do formal letter writing as such. हम हर चीज email पे जाती है, और email में भी formal informal दोनों होता है. So formal emails are there that you write to clients, you write to bosses, you write to subordinates, you write to colleagues, you write to people in the hierarchy or institutions or wherever. Okay, so audience is very important to know who are you writing to. So the whole formality changes with who your audience is. Okay, what is the I in the writing? They are absolutely right. What information must the message contain? Information उनको आपको क्या देना है? तो आपके पास हो गया purpose of writing, आपके पास हो गया audience, और अब आपको decide करना है कि what is the information that I'm trying to give out to them? What information should they have? So it's information. Okay, उसके बाद हो गया B. B क्या होगा? What should be the B for? Benefits. So what benefit will the person have from reading it? देखो, कुछ भी होता है ना तो हम अपना फायदा देखते या नहीं देखते? What's in it for me? Why should I read it? What am I supposed to do with it? So benefit is there. And the C, everybody text. What is the context? Context होना जरूरी. It affects the reader, उसका reason, whatever they're doing. O was for objection. ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस पे क्वेश्चंस क्या आएंगे. ऑब्जेक्शन डज नॉट मीन समबडी इज ऑब्जेक्टिंग. इट्स नॉट अ कोर्ट कि ऑब्जेक्शन और योर ऑनर और आई ऑब्जेक्ट. वो वाली ऑब्जेक्शन नहीं है ये ऑब्जेक्शन वो है वेयर समबडी हैज अ क्वेश्चन. सो यू विल नो व्हेन यू राइट के इसमें कोई क्वेश्चन आएगा or that person will have. So how are you going to address that? So you have to be ready for that as well. Okay, Arif, moving on. What I would like to now touch upon a little bit before we go into this email की formality के ऊपर is the concept of subjective and objective writing. Subjectivity, objectivity is writing. देखिए, writing जो है ना ज़्यादातर जो हम करते हैं वो subjective करते हैं. Okay? Subjective का अंदर क्या होता है? Personal pronoun या pronouns use करते हैं हम. I, me, myself, ये सारी चीजें subjective writing होती है. For example, I am writing to let you know my observation is I feel this way, my house is so far, my, I, me, हम, वो subjective हो गया. Objective writing कहाँ आता है? When you do report writing. देखिए, अब जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कभी भी नहीं लिखा होता है I नहीं होता. रिपोर्टर रिपोर्ट करता है कि this incident took place at this in this time, so many people were injured, the findings are बताएंगे. Objectively वो बता रहा है कि actually हुआ क्या था. Subjectively वो नहीं बोलता मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल से अगर वो बंदा कितनी तेज गाड़ी नहीं चलाता तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, मेरे ख्याल से आपका ख्याल नहीं आता, इसलिए कि that is opinion. Opinion is subjective. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में ओनली पार्ट व्हिच इज सब्जेक्टिव इज द एडिटोरियल कॉलम. इसलिए कि एडिटर अपने व्यूज देता है एंड दैट्स द ओनली प्लेस वेयर इट्स सब्जेक्टिव. अदर देन दैट इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव. ओके, सो इफ देयर इज एन इंसिडेंट और एन एक्सीडेंट फॉर समबडी, कोई फिसल गया फॉर एग्जांपल ऑन वर्क साइट, ओके, एंड आप लोग की कोई अभी तो चलो फेस टू फेस नहीं, गाइडिंग का इवेंट हो रहा है, आप वो नेशनल कोचिंग सेंटर पे मिल रहा है, आप लोग का कोई इवेंट हो रहा है, somebody slips and falls for example and twists their ankle. अब आपने उसको रिपोर्ट तो बना, एक उसका इंसिडेंट तो बनेगा ना, लिखेंगे ना कि क्या हुआ था, because it has to be on record that this incident had taken place on that day. So subjective कब हो जाएगा? where उसे well she was not watching what she was doing and she walked into the whole thing. She should have seen कि नीचे पानी गिरा हुआ था.
अब ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी कहाँ आएगी? There was water on the floor. Findings show that there was water on the floor, and that is the reason for the person slipping and falling. Message same है. Objective आ गया, एक subjective आ गया. So the objectivity takes your personal bias away. जब हम subjective होते हैं ना, तो अगर किसी के खिलाफ हमें अच्छा कोई बंदा नहीं लगता, तो सारी भड़ास उस वक्त निकल जाती है. बंदा कभी सही काम नहीं करता, कभी सीधी चलती नहीं है, हमेशा उछलती रहती है, गिरना तो था ही इसने. ओके, these are the kind of language we start using because we become subjective. But when we are objective, then we are very focused and very clear. So when we do email writing, there is a degree of subjectivity, but more of it is objective. You can't be subjective in that, too much subjective. Subjective में क्या हो जाएगा? Yes, I am writing. देखिए अक्सर हम लिखते हैं ईमेल के अंदर I am writing to let you know. Excuse me बेटा, I am writing तो तू लिखोगे नहीं, तो वो तो पढ़ नहीं रहा है ना, तो I am writing लिखने की क्या जरूरत है? That is redundant now. I feel, I think, तो जो think करते हो बोलो, लिखो ना डायरेक्ट. I think बोलना जरूरी है कि I think this how it should be. Go straight into it. This is a good option of doing something. Reword, editing यहाँ पर आती है, rewording के अंदर editing आती है आपकी. So when you reword, that is where the editing part comes in. So don't be subjective about it. I think, I feel, अब उसको तो नहीं पता ना आप क्या feel कर रहे हो, आप क्या think कर रहे हो, और वो लिखने की जरूरत नहीं है. So take the redundancies out, and that's how you do your editing, and that's where subjectivity, objectivity comes in. So try to be as objective as possible. और जब भी कभी भी फ्यूचर में जो लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अगर कोई इंसिडेंट आप रिपोर्ट कर रहे हो और कोई पर्सन इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो जब पर्सन इन्वॉल्व होता है ना, तब क्या होता है कि वी नीड टू गिव द पर्सन्स नेम. हम ऊपर लिखेंगे सो एंड सो, क्या एक नाम उठाती हूँ, अनुषा शहजाद. ओके, देयर इज अनुषा सिटिंग ओवर हियर, सो आई एम सेइंग अनुषा शहजाद, HR ऑफिसर. ओके, सो वी कैन से इंसिडेंट इन्वॉल्व्स अनुषा शहजाद, HR ऑफिसर. ओके, अब उसके बाद जब इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे ना, तो अनुषा का नाम वापस नहीं लेंगे हम. We'll just keep saying the HR officer, the HR officer, the HR officer, the procurement officer, the sales person, the sales manager, the fala fala. Designation से बात करेंगे, क्योंकि the moment you start taking name, again subjectivity आ जाती है हमारी. Okay, you've given the name once, that's it. ऊपर लिखा हुआ है कि किसका केस डिस्कस हो रहा है, फिर आप चले उसको उसके डेजिग्नेशन के साथ. You stay objective and clear about it. And another reason for that is this, देखो ये दुनिया में ना कोई चीज स्टेबल नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है. एवरीथिंग चेंजेस. आज अनुषा जो है वो HR ऑफिसर है, कल HR डायरेक्टर हो जाएगी, कोई ग्रुप HR हो जाएगी अनुषा. और अगर आपने ऐसी वैसी कोई चीज लिखी है, वो भूलने नहीं वाली है, वो आप लोग सबको देख लेगी. ओके, सो whatever you write, remember that nothing is confidential in writing, nothing stays confidential. So nothing ever stays confidential, no matter how much we feel. किसी को भी ट्रस्ट कितना भी कर लो ना, जब राइटिंग में एक दफा डाल दिया फिर भूल जाओ, वो कभी ना कभी बात निकलेगी जरूर. So your writing has to be very very neutral. It has to be legally correct. We have one request कि अगर हम email का format अगर white board पे दिखा सके, तो I'll just share screen right now. That's okay with you, Meena? Yeah, certainly, no problem. Right now whiteboard, and I'll start writing. You just guide me कि मुझे क्या क्या लिखना है, so the people know entire format of the email, right? Okay. So what's the start, Meena? Start is your subject line, which is also your headline. I love blue, but let me see that if I can go for subject line. Okay, what's next? Subject line is your headline. Okay. Headline. Okay, then you're going to say is your word choice. Word choice? Yes. Vocabulary. Your vocab. CUCAB. Okay. Then you got is this that your it should be concise. CONCISE. Okay. Then you just like the paragraphs, short paragraphs. How many paragraphs?
Paragraphs, we were looking at anywhere between 6 and 12 lines at the most in a paragraph. 3 to 12, you can say, or 6 to 12, depending on how long the email is. PA per paragraph, okay. Okay. then we are saying, okay. Cool, okay. Okay, then what we are saying is this, that we are looking at writing an email when you're angry or flamed. Don't write email. Don't write email when you're angry or flamed. Okay. Then you say, don't send blank messages. Yes. Tell the readers what action you want. Action plan. This is one thing that people miss a lot. Okay. Knowing your audience and their preferences. Audience and preference. Perfect. Formal or informal messages. Formal. Okay, then you've got is proofread. Then we are looking at information overload. Okay. Then you have, is this confidential information डाल दिया था हमने? Yep. डाल दिया था? On information. Yep, done. Okay. Reply promptly. Oh yes, that's again a very interesting area. Reply promptly. And then standard conventions. No smileys, no emojis. No emojis. हमारे. And the background has to be white. Background should. Okay. White, WHITE. Okay, guys. So what happens is, why do we say headline, subject line को? Because when you read a newspaper, आप क्या पढ़ते हो? Headline देखकर पढ़ते हो. आप कोई article पढ़ते हो, आप headline देखकर पढ़ते हो. When you open your screen, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आता है? ईमेल के आपको सेंडर नजर आता है, आपको सब्जेक्ट लाइन नजर आता है, फिर आपको फ्लैग करते हैं. ये लोग बहुत शौक होता है ना रेड फ्लैग्स करने का लोगों को. So they start flagging, and then you see the time, etc., etc. Okay. So people open the email based on अगर काम कर रहे हो, आप प्रोफेशनल है तो हायरार्की देखकर आप खोलते हो कि भाई बॉस का ईमेल है तो खोलना ही खोलना है मुझे. ओके, सो यू ओपन दैट ईमेल फर्स्ट. अगर बॉस का नहीं और हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप देखते हो, अच्छा ये मेरे दोस्त ने भेजा तो ये मैं पहले खोलूंगा. उसके अलावा देन वी लुक एट द सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन को बेस करते हुए हम ईमेल खोलते हैं. दैट्स व्हाई योर हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर हेडलाइन इज योर सब्जेक्ट लाइन. अच्छा, सब्जेक्ट लाइन में दूसरी चीज क्या है कि सब्जेक्ट लाइन यू शुड नॉट बी यूजिंग द होल सब्जेक्ट लाइन कि आप स्क्रोलिंग करके आगे स्क्रीन से बाहर निकल रहा है सब्जेक्ट और आप पढ़ते जा रहे हो. मैक्सिमम सब्जेक्ट लाइन कैरेक्टर इज 55 कैरेक्टर्स. व्हाट इज अ कैरेक्टर? One alphabet is a character, not one word. One alphabet. A is a character, B is a character, C is a character. Okay, so one character. Maximum 55. If you can't remember 55, don't worry about it. All you have to remember is कि उसका जो ईमेल का पेन है, उसका सब्जेक्ट लाइन है, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट लाइन आ जाना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए. Another thing, सब्जेक्ट लाइन में पूरा ईमेल लिखने की कोशिश मत करें. You have नीचे जगह है आपके पास एक्चुअल ईमेल लिखने का, उसमें जाकर ईमेल लिखे. Don't write it in the subject line. Okay. Your vocabulary, your word choice is very important. How you write, what you write. Simplicity is very, very important. That be as clear and simple.
देखो, the important thing about writing is that the अगला बंदा समझ जाए आप उसको मैसेज क्या दे रहे हो. ये नहीं कि आपने थेसॉरस खोल कर जितने दासू किस्म के लफ्ज आपको नजर आए वो आपने ठूस दिया अंदर. Oh my God, what an awesome email I have written. But वो awesome email का फायदा क्या है if nobody understands what you've written? Okay, so very, very important that you write with simplicity. Okay. Conciseness, again, conciseness हम क्यों बोलते हैं? Concise means जितना simple short हो. First 2 sentences में आपका email का जो भी essence है, जो आप कहना चाहते हैं, वो आपको बांध कर लिख लेना है. Because if you don't, you're gonna lose your audience. हमारा attention span है ना बहुत limited है. Okay, 20 second के अंदर whatever the person reads is the person retains. After the 20 second, the person goes on autopilot. You don't want your reader to go on autopilot. If they go on autopilot, your game is lost. So 20 second, आप email को लिख के 20 second टाइम करें और देखें 20 second में उसने आपका key message क्या था. What was the purpose of your writing? उसको अगर आपने ले लिया तो you're great. Okay. Paragraphs, 6 lines or 12 at the most. 12 lines कब हम इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ में? जब आप एक्चुअल लेटर लिख रहे होते हैं. ईमेल के अंदर आप 3 to 6 के अंदर चलेंगे इन अ पैराग्राफ. ओके, पैराग्राफ में ले पर्सन्स रूल, चेंज ऑफ आइडिया, चेंज ऑफ पैराग्राफ. व्हेन आइडिया चेंजेस द पैराग्राफ चेंजेस. कॉमा कब लगाते हैं? जब आप पॉज करते हैं बात करते करते और आप एक बोलते हैं उसमें पॉज लगाते हैं जब कॉमा लगता है, और फिर आप फुल स्टॉप लगाते हैं जब आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया. अच्छा, another thing here I would also say is the reading of an email or a letter of or any document. Whatever you read, whenever you read, if there's a comma, you pause. If there is a full stop, you take a full breath. Reason being, अगर आप रेलगाड़ी की तरह you're gonna run through the whole reading part, it's not gonna sink in and you're not gonna understand what you read because you did not follow the punctuations. You'll have to read it at least thrice to understand or grasp the whole essence of it. So the best, अगर पहली दफा में आपको सारा समझना है, तो best is आप pause करें, full stop पे रुक जाएं, and then you continue reading. Don't write emails when you are flamed or angry. When we are angry, we want to say a lot of things. अगर वही चीजें किसी के मुंह पे जाके बोल सकते हो, बोलोगे नहीं बोलना, बट अगर बोल सकते हो, आपको लगता है you're gonna live with it and you're gonna manage it, be my guest. But rule of thumb is, गुस्सा जब आ जाए ऊपर से to, from सब हटा दो, भड़ास निकाल लो, उसको ड्राफ्ट में छोड़ दो, एक दिन के बाद जाके पढ़ो. ठंडे पड़ जाओगे, पॉसिबिलिटी पूरा ईमेल डिलीट हो जाएगा, या आप रीराइट करके बहुत सिंपल सा जवाब दे दोगे, या you're gonna finish it off on the phone, something like that. Okay. So don't write when you are angry. Okay. Don't send blank messages. अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम एक अटैचमेंट भिजवा देते हैं और मैसेज ब्लैंक जाता है. The person doesn't know what to do with the message. So या फिर मैसेज चला जाता है और अटैचमेंट भूल जाते हैं. अटैचमेंट अक्सर भूल जाते हैं. वो जो उससे मैंने एग्जांपल दी थी कि वो अटैचमेंट भेजने से पहले हम क्या लिखते हैं? क्लोज प्लीज फाइंड. और वो बेचारा ढूंढता रहता है प्लीज फाइंड, तो वो ढूंढ रहा है, तो अटैचमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने लगाया नहीं अटैचमेंट. हमने भी अपने जमाने में, अभी भी कभी कभी हम जल्दी में होते ही कर देते, मैं भी कर देती हूँ. तो माय रूल ऑफ थंब इज दिस, के जब मुझे अटैचमेंट लगाना होता है तो मैं पहले अटैचमेंट लगाती हूँ, उसके बाद मैं ईमेल टाइप करती हूँ, और मैं किसको ईमेल भेजती हूँ मैं सबसे आखिर में डालती हूँ. बिकॉज कभी अगर हाथ लग गया, आपका सेंड हो गया, या हमको जो जल्दी पड़ी होती है ना ईमेल भेजने की, सेंड पहले थोड़ी देर पहले बात कर ली थी कि यू शुड नो योर ऑडियंस. ओके, अब ऑडियंस में अब मैं यहाँ कह रही हूँ नो योर ऑडियंस प्रेफरेंस. प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर इफ आई एम राइटिंग एन ईमेल फॉर एग्जांपल टू शम्स जीवा, ओके, अगर मुझे पता है कि इसकी प्रेफरेंस है कि वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में चाहती है कि लिखा जाए, बुलेट्स में चाहती है कि लिखा जाए, then you write the email in bullet. अच्छा देखिए,
Another thing about email writing is also writing के अंदर क्या है कि जितना bullet point में लिखोगे ना अपने points को, इतनी mistakes कम होगी, इतने typos कम होंगे, इतना लिखना कम पड़ेगा. Because when you write in paragraphs, आपको पूरा paragraph में sentence बनाना पड़ता है. Bullet में sentences इतने नहीं बना, in the bullet में very clear होता है. 1, 2, 3, 4. Okay, these are the things that we will be doing. 1, 2, 3, 4, 5. अगर ये अभी हमने bullets बना दिए, okay? Knowing your audience preferences, तो ये bullet हो गया. अगर इसको हमने बुलेट में नहीं डाला होता, पैराग्राफ में डाला होता, तो हम पूरा उसमें एक पूरा उसको रिवायत के साथ अभी कह रहे होते हैं, योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑल हैव देयर प्रेफरेंसेस, पीपल लाइक टू रिसीव ईमेल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स, सो यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट देयर प्रेफरेंसेस आर, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, और उसके बाद जो है आप ईमेल भेजें. ओके, ये क्या हो गया? ऑडियंस प्रेफरेंस बुलेट में आ गया. Now bullet is also acceptable today in letters as well. अगर आपको 3 assignment किसी को देने या 3 चीज कहनी है, तो better to do it 1, 2, 3 in 3 bullets rather than 3 paragraphs, because the person will probably miss at least one of the assignment or one of the things. Because हम पढ़ते हैं, ऊपर का भूल जाते हैं, हम skimming करते हैं. जैसे मैंने कहा ना 20 सेकंड के बाद तो skimming शुरू हो जाती है हम सबकी. आप notice कीजिएगा. You don't read after 20 seconds, you just skim through. वही चीज बोल रहे होंगे ना वापस, ठीक है. It's like okay fine, कोई इतना important नहीं होगा. आके इतना बड़े ईमेल में क्या बोल रहे होंगे बोल बोल के हमको. वही बोल रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे. जो ट्रेडिशनल स्टाइल था कि पहले बोलो फिर बताओ फिर वापस बोलो, नहीं, that doesn't work anyway, and that's the reason we were saying conciseness. So audience preference बहुत जरूरी है. Writing needs perfect tenses. What can we do to make our tenses perfectly? Can you guide us, Sina? Because there's no such thing as perfect. Okay, writing is, everybody has a different style of writing. What is perfect to you is not perfect to somebody else. Okay, what do you mean by tenses? Tone has to be right, structure has to be right, vocab has to be right, the way you write has to be right. So write it right, WRIT, write it, RIGHT, right, write it right. Okay, so tense के अंदर ये है कि it's जितना simple होगा इतना उसको समझ में आएगा. That's the perfect way of writing. That simple tenses, vocab is simple, so writing is simple. And I hope अगर समझ में नहीं आया तो you can rephrase your question again and we'll try and get back to you again on this one. How to make your writing more engaging. We'll come back to that in a few minutes. Okay. Yeah, so now cool. हमने कहा था ऑडियंस का प्रेफरेंस आपको समझ में आ गया कि ऑडियंस का प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए. फॉर्मल इनफॉर्मल मैसेजेस, अगेन यू नो दैट इवन इन योर ओन, अगर आप काम कर रहे हो तो ऑफिस के अंदर जितनी ईमेल जाती है, ऑल्दो इट्स इनफॉर्मल, इट्स स्टिल फॉर्मल. दोस्तों में आप जितना भी इनफॉर्मल लिखना चाहे आप लिख सकते हैं. हाय, पेट नेम से बुला ले, पीछे आप स्क्रीन कलर्ड कर ले, उसमें आप इमोजीज डाल दें, आप उसमें हग्स डाल दे, हार्ट्स डाल दें, कुछ भी डाल दे. कैन यू इमेजिन सेंडिंग ए रेज्यूमे और ए फॉर्मल ईमेल विद अ हार्ट थ्रॉबिंग रेड कलर का ऐसे ऐसे करता हुआ? वुड यू डू दैट? नहीं ना. सो नो इमोजीज, ओके, इन एनी बिजनेस राइटिंग, whatever it may be. Okay, proofreading हम already बात कर चुके हैं कि proofreading होना बहुत जरूरी है. Information overload. What is information overload? Information overload is when you're writing too much. एक सवाल पूछा, 3 के जवाब मत दें. Only respond to the question that has been asked. But I have this extra information that I think will be very good for this person. Yes, it may be very good for the person, but the person does not need it right now. A lot of you must be, आपके पास हर कोई ये फोन हम यूज करते हैं ना, कोई टेलेनॉर यूज कर रहा है, कोई जैज कर रहा है, कोई जोंग कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्योंकि आज के लिए जैज और जोंग वालों के मैंने 2-3 मरतबा कॉल रिसीव किया है. आप ये पैकेज यूज कर रही हैं तो वुड यू लाइक टू यूज दिस पैकेज, और आप ये करेंगे तो आपको ये हो जाएगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट वो मुझे 25 चीजें बताती है ऑन पैकेजेस. दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड फॉर मी. अगर वो सिंपली मुझे कहने के यू आर यूजिंग दिस पैकेज, उसके बेनिफिट्स ये है, बट अगर आप ये पैकेज इस्तेमाल करें तो आप इतना, आपके बेनिफिट्स ये चेंज हो जाएंगे. दैट विल मेक सेंस टू मी. बट आई एम गेटिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, तो जैसे फोन करती मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं फोन बंद कर देती हूँ. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो डोंट डू इन्फॉर्मेशन ओवरलोड व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर स्पीकिंग आल्सो.
उतना ही इंफॉर्मेशन दे जितना रिक्वायर्ड है, विच इज सूटेबल, विच इज नीडेड एट दैट टाइम. देन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम ऑलरेडी जूलियन असांज की बात कर चुके हैं, दैट डोंट गिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. कितना भी कॉन्फिडेंशियल हो, आप फेस टू फेस जाके बात करें, आप फोन पर बात करें. आजकल फोन भी रिकॉर्डेड हो जाती है, फेस टू फेस में भी लोग रिकॉर्डिंग कर लेते. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर लैंग्वेज यू यूजिंग, दैट अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही है, इज इट गोना बी यूज्ड अगेंस्ट यू. क्योंकि देखिए आज है ना, आप लोग सब बच्चे हो, आई मीन टू मी यू आर ऑल न्यू बॉर्न सॉर्ट ऑफ, इतने छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग. ओके, बहुत स्मार्ट हो, बट यू आर स्मार्ट हो, बट यू आर बच्चा. आरिफ बड़ा खुश हो रहा है, होने दो उसको. ओके, सो थिंक इज दैट पीपल, इतनी नई चीजें रोज आ रही है कि दे ट्राई टू कॉन यू. You don't want to be conned by people. So be very alert. You have to be very, very alert when you are talking to people, when you're doing things. Okay. Reply promptly. बहुत जरूरी है that when people ask you questions, have the courtesy to respond back. अगर information नहीं है तो भी respond back करो कि I'll get back to you within next day, day after tomorrow. Give them a particular specific. अच्छा, इसको हम time markers कहते हैं. What are these called? These are called time markers. Time markers क्या होता है? दिस डेट, जैसे आपने अटैचमेंट भेजा तो उसमें आप लिख रहे हैं कि कैन वी डिस्कस दिस एट योर कन्वीनियंस. देयर आर नो टाइम मार्कर्स. क्या दिया आपने? एट योर कन्वीनियंस. दैट मींस मैंने आरिफ को ईमेल भेजा या मैंने शगुफ्ता को ईमेल भेजा, तो मैंने शगुफ्ता से कहा कि शगुफ्ता एट योर कन्वीनियंस. तो शगुफ्ता से ओके, अभी मेरा तो ये पूरा सेशन चल रहा है, आज भी पूरा दिन चलने वाला है, उसके बाद मैं इतना थकने वाली हूँ ये सेशंस कर करके, I'm going to rest, chill for one day, and then it's going to be my convenience. सही है शगुफ्ता? Am I right or wrong? तुम्हारा convenience जब ही आएगा ना, ये सब सेशन खत्म होगा, फिर तुम चिल करोगी एक दिन के लिए. चिल करने के बाद तुमको जो भी करना है तुम करोगी. अब तुम्हारा कन्वीनियंस शुरू होगा. मेरा कन्वीनियंस है कि मुझे तो तुमसे आज ही बात करनी है, तुम मुझसे तुम एट द मोस्ट कल सुबह तक बात करनी है, बट मैंने तुमको कोई टाइम मार्कर नहीं दिया. I should have told you this is urgent. We need to discuss this and come to a conclusion by tomorrow afternoon, by 28th of June, 29th of June, 30th of June, by 5 p.m., by 4 p.m., by 3 p.m. You have to guide your audience and tell them exactly what you want done and when you want it done, not ASAP. Because ASAP हमारा तुम्हारे में बहुत फर्क है. Your ASAP is different than my ASAP. So you have to be very careful about that. स्टैंडर्ड कन्वेंशन की बात की, दैट मीन्स आपका देखिए ऑफिस में जो काम करता है उनके सबके ग्राफिक्स मैनुअल होते हैं. ग्राफिक्स मैनुअल के हिसाब से आप कन्वेंशंस यूज करते हैं, यानी फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे, फॉन्ट का साइज कौन सा होगा. दोज हु आर नॉट वर्किंग, अपना स्टाइल बनाओ, एक कन्वेंशन बनाओ अपना कि व्हाटएवर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस दैट आई विल डू फॉर्मली, मैं कैलिब्री का फॉन्ट यूज करूंगी, मैं जॉर्जिया का फॉन्ट इस्तेमाल करूंगी, मैं एरियल यूज करूंगी, एरियल कपड़े धोने वाला नहीं, ओके, और मैं टाइम्स रोमन यूज करूंगी. व्हाटएवर यू गोना यूज, then stick to that font, that make it your personal font. Okay, so all your correspondence should then be in that font. Okay, आपके पास इसमें कोई आपका लेटर हेड नहीं है क्योंकि you are all बच्चास, you are all working. Okay, what you can do is, एक जब आप फॉर्मली किसी को लिखते तो छोटा सा बना देना ऊपर, फ्रॉम द डेस्क ऑफ शगुफ्ता रहमत, फ्रॉम द डेस्क ऑफ हैना वेलजी. इतना अच्छा लगता है डेस्क ऑफ, वो आपका सिग्नेचर बन गया. उसके नीचे और नीचे आप अपना एड्रेस, जो आपका ईमेल आईडी और आपका जो भी है टेलीफोन कांटेक्ट जो आपको लोगों को देना चाहते हैं, तो एक नीचे आप मार्कर लगा दे, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके कि दिस इज वेयर यू कैन पीपल नो यू कैन बी रीच्ड एट दिस एड्रेस. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो अगर वो आपने एक पेज लेटर हेड की तरह बना दिया तो उसके अंदर आप एक अच्छी सी ब्लू रंग की लाइन खींच सकते हैं, ग्रीन रंग की लाइन खींच सकते हैं, रेड रंग की लाइन खींच सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर. But your font has to be still, typing font has to be black. Typing का font का size has to be 11 से 12 preferable. 11 और 9 और 8 में आंखें ऐसी हो जाती है पढ़ने की कोशिश में, और हम सारा स्क्वीज करने के हम समझते कंसाइसनेस मींस उसको कंप्रेस करके सार्डिन्स की तरह एक बॉक्स के अंदर जो है ना, कैन के अंदर पैक कर दो. That's not conciseness. Conciseness means conciseness in writing, come words, clarity more. Okay. Now, no emojis हम बोल चुके, background should be white हम बोल चुके. आरिफ ने यहाँ CC BCC लिखा है, which is very very good. CC का देखें, जब जो लोग काम करते हैं, अभी जैसे आप लोग को गाइड्स की तरफ से बहुत सारे ईमेल आते होंगे, आप लोग सब CC में होंगे उसके अंदर. जब CC में आप हैं तो आप रिप्लाई ऑल नहीं करते.
You only reply to the sender. If you have any issues, you reply to the sender. If you think the information needs updating, you still reply to the sender. If Shams has sent that email, Hina has sent that email, Shagufta has sent that email, whoever has sent that email, you write to that person and say, आपा आई थिंक यहाँ पर ये आपने लिखा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको चेंज करके ऐसा कर दें, ये बेटर रहेगा, या ये टाइम आपने लिखा बट ये टाइम हमारा ये नहीं था, ये फला टाइम हमारा है. सो यू राइट टू दैट. हम रिप्लाई ऑल नहीं करते. रिप्लाई ऑल आप कब करते हैं? व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रूव टू समबडी एल्स कि ओ हाउ स्मार्ट आई एम, और ये हमारी हेड तो बनी हुई है बट इसकी प्रूफ रीडिंग ही नहीं की उसने. No, don't try to put people down. That's not the convention. Convention is reply only to the CC, to the person who sent it. BCC का function आप कब इस्तेमाल करते हो, और हिनापा और शम्स कभी इस्तेमाल करेंगे जब when they are sending a mail shot, mass mailing करते हैं, and when there are other people involved also, and they don't want everybody to know कि आपने किसको क्या भिजवाया. जब आप BCC इस्तेमाल करते हैं. Mehak, okay, Meena, this is a question. Mehak is asking, I've seen formal emails in blue or red or highlighted text. Is it okay? No, it's not okay. जिसने भी लिखा वो अभी तक ग्रेड 8, 6, 7, 8 में पढ़ रहा है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. जैसे पावर पॉइंट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनिमेशन आता है, एक स्लाइड ऊपर से आ रही है, एक स्लाइड नीचे से आ रही है, एक टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है, थोड़ी देर के बाद सर घूमने लगता है कि क्या हो रहा है. सेम थिंग, if you are a professional, if you want to be a professional, white background, black ink, and that's about it. ब्लू इंक सिर्फ उसी सूरत में हम ईमेल्स में इस्तेमाल करते हैं जब हम रिप्लाई करके उसी ईमेल पे उसको जवाब दे रहे हैं कि ओके, लुक एट माय कमेंट्स इन ब्लू. ओके, दैट्स व्हेन यू यूज द ब्लू इंक टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स. उसके कमेंट्स के आगे आप अपने नोट्स लिख रहे हो जब हम ये ब्लू इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज नो हाइलाइट्स, नो रेड, नो ग्रीन, नो पर्पल, नो पिंक, नथिंग लाइक दैट. ओके, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है ईमेल की. Cool scene. So I hope that has been answered. There is another question. I'll try to answer this. Sarah is asking that people used to recommend don't write how are you in a formal email. So is it right, Sarah? It is really, it is okay. Don't ask a question. Assume. For example, if you're writing a formal email, assume that hope all is well at your end. I hope you are doing good. Okay? So rather than a question, you assume a statement and you move forward. That should be the way to go. आखिर में मैं अपने स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इतना अमेजिंग सेशन हमें दिया. मेरे साथ साथ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे अगले आने वाले सेशंस में भी आप सब हमारा साथ देंगे और हमें ज्वाइन करके लर्निंग के इस एडवेंचर को आगे बढ़ाएंगे. Until next time, Allah Hafiz.